Hello guys, myself Madhuri. Welcome back to our YouTube channel tutorial of your Edufy India. Before starting our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp, Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt sessions and quizzes. So let's start. Today's the topic of our discussion is the chapter number 4, carbon and its compound. इसी में हमने पार्ट 1 बनाया था. अगर आपने वो प्लीज नहीं देखा होगा तो प्लीज इसका पार्ट 1 देखें और इसके बाद इसका आगे का पार्ट देखें. यह हमारा पार्ट 2 वीडियोस है. तो इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं हम? वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन. We have seen the formation of the covalent bond by sharing of the electrons in the various elements and compounds. We have also seen the structure of the simple carbon compound methane. हमने मीथेन की भी स्ट्रक्चर देखी है और वेरियस स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी देखे हैं इन प्रीवियस चैप्टर. आपने नहीं देखा हो तो प्लीज हमारा प्रीवियस वाला वीडियोस देखें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 1. And in the beginning of the chapter we saw how many things we use to contain the carbon. In fact our cells are made up of the carbon. The number of carbon atom whose the formula known the chemist was recently estimated to be in million. This outnumbers by the large margin the compounds formed by the other elements put together. ये सब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है. Why is it that the property is seen the carbon and the no other elements? The nature of the covalent bond enables the carbon to form the large number of compound. Two factor notice in the case of carbon. Carbon has a unique ability to form the bond with other atoms of the carbon. मतलब कार्बन की यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड बना सकता है अदर कार्बन एटम के साथ, गिविंग द लार्ज मॉलिक्यूल देता है. और वो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन. उस प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. व्हाट इज द कैटिनेशन? द कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन द bond with other atoms of carbon, give rise to the large molecule. This property is called as catenation. This compound may have the long chain of carbon, branched chain of carbon, or even the carbon atom arranged in a ring. In addition, carbon atoms may linked by the single, double or triple bonds. The compound of carbon which are linked by the only single bond between the carbon atoms are called the saturated compound. अगर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन. मतलब जैसे कि कार्बन और कार्बन ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड. ये कौन से कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड. द कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन. The compound of carbon having double or triple bond between their atoms, carbon atoms are called unsaturated. तो ये कौन से है? हमारे सैचुरेटेड है. और ये कैसे? अनसैचुरेटेड है. ओके. No other elemental exhibits the property of catenation to extent since in the carbon compound the silicon forms the compounds with the hydrogen which have the chain up to 7 to 8 atoms, but these compounds is very reactive. The carbon bond is very strong and hence stable. वो strong होने की वजह से stable है. This gives us the large number of compound with the many carbon atom linked each other. Since the second factor क्या है? Since the carbon has a valency 4, it is capable of the bonding with the four other atoms and atoms of the some other monovalent elements, and the compounds of the carbon are formed with the oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements giving rise to the compounds with the specific properties which depends on the elements
other than the carbon present in molecule. Again, the bonds that the carbon forms with the most other elements are the very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of the strong bonds by the carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by the elements having the bigger atoms are the much weaker. मतलब bigger atom है तो वो much weaker म्हणजे कम weaker होता है. Do you know the organic compounds? The two characteristics features seen in the carbon, that is tetravalency and catenation. Put together give rise a large number of compounds. Many have the same non-carbon compounds and or the group of atoms attached to different carbon chain. This compound were the initially extracted from the natural substances, and it was thought that these carbon compounds and organic compounds could be only within the living system. That is it was the postulated the vital force was necessary for the synthesis. And Frederick Volcher disproves this in 1828 by the preparing the urea from the ammonium cyanide. But the carbon compound exceptions for the carbide, oxides of carbon and carbonate, and hydrogen and carbonate salts continues to be studies under the organic chemistry. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे कि ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमारा ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन. नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. We have already seen the structure of methane. Another compound formed between the carbon and hydrogen is ethane. The formula is C2H6. C2H6. Ethane का formula क्या है? C2H6. In order to arrive at the structure of the simple carbon atom, in the first step is to link the carbon atom together in the single bond. तो ये किससे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से लिंक. पहले के हम क्या करेंगे? सिंगल 2 कार्बन, क्योंकि C2 C2 तो C2 कैसे लेंगे? तो C-C कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड. ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट स्टेप होगी. एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन. हमें क्या पता है कि हमें क्या पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन. तो इसमें जो वैलेंस प्लेसेस होंगे उसमें हम सब जगह पे HH लिख देंगे. each कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैव द 3 एटम हाइड्रोजन एटम. तो इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो गए. These 3 valencies of the each carbon atoms remain unsatisfied, so each bonded to the 3 hydrogen atoms giving. And next is the electron dot structure. Electron dot structure of the ethane. Can you draw the structure of propane? Yes, of course you draw. जैसे प्रोपेन के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? 3 कार्बन लिख देंगे. यह हमारा स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में क्या करेंगे? अभी ऐसे ही कार्बन लिख देंगे. और इसमें क्या हमें क्या पता है? ये हमारे वैलेंस प्लेस उसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन फिल्ड करेंगे. तो हाइड्रोजन लिखने के ये क्या होगा हमारा? प्रोपेन. ये प्रोपेन ये सेकंड स्टेप है. तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 8 3 सॉरी यहाँ पे प्रोपेन का जो फॉर्मूला है C3H8 है. ओके, तो ये हमारा प्रोपेन का फॉर्मूला हुआ. तो इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 और हमारे ये जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें क्या हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गए. ओके, नेक्स्ट है हमारा इथेन. इथेन में इथेन में कैसे होता है? इथेन में C2H6 होता है. लेकिन इथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. तो इथीन में क्या होगा? और इथीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n. ओके, कौन से भी इथीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ये हमारा अल्कीन का फॉर्मूला है. तो इसमें क्या फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी?
कि कार्बन कार्बन सिंगल लिख देंगे, फिर उसमें हाइड्रोजन अटैच करेंगे और डबल बॉन्ड बनाने की वजह से एक एक हाइड्रोजन हमने कम लिख दिया और बाद में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। Another the compound of the carbon and the hydrogen had the formula C2H4 and it is called ethene. Okay, और ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का कैसे लिखेंगे हम, वैसे ही करेंगे हम जैसे कि इसमें किया था। कार्बन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सर्कल करेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे। ओके, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, इथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2, ये हमारा इथाइन का फॉर्मूला है। अल्काइन का क्या है, अल्काइंस का फॉर्मूला कैसे लिखने, CnH2n -2, ये हमारा अल्काइन का फॉर्मूला है। तो ये देखो यहाँ पे हम H लिखेंगे और यहाँ पे भी H लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कितने ये शेयर करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, X डॉट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इन अर्लियर सेक्शन वी हैव मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2, 3 carbon. Such a chain carbon atoms can contain the many more carbon atoms. Names and structure of these 6 of these are given in this table. इस टेबल में क्या है, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड के दिए है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ, फर्स्ट कॉलम में का नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। दोनों अगर 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, मीथेन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन और 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंड द फॉर्मूला क्या होगा, 1 कार्बन मतलब C1H2H4, मतलब उसमें 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन है। इसमें आपको यही याद रखना है कि ये सारे क्या है, अल्केन्स हैं। अल्केन्स का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे अगर n की जगह पे आप 1 लिख देंगे तो C1H2 और 2 के n, यहाँ पे 1 की जगह पे भी क्या आपने लिखना है, n = 1, मतलब जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे n = 1 होगा। मतलब अगर कार्बन 1 है तो n की जगह पे 1 लिखेंगे, अगर कार्बन 2 है तो n = 2 आएगा, अगर कार्बन 3 है तो n = 3 आएगा। ओके, इस तरह से आप भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो देखो अगर हम प्रोपेन लिख देते, ब्यूटेन लिख देंगे, n = 4 मतलब C4, H H2n, 2n n की जगह 4 लिखा, 4 × 2 8, 8 + 2 10, मतलब देखो H की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है कि हम पहले कार्बन लिख देंगे और उसमें जितने में हाइड्रोजन वैलेंस हो गए वहाँ पे H लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि हम पहले तो ऐसे कार्बन लिख देते हैं सिंगल, और अगर जो दूसरे पॉसिबल स्केलेटन कैसे है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमने फिल कर दे और यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या, हेक्सेन का मतलब क्या है कि 6 कार्बन है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर। ओके, ऐसे रिमेंबर रखना है आपको।
याद रखना है कि पहले कार्बन का साइकिल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आपको पता है कार्बन में देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऐसे उसके और दो दो बॉन्ड हो सकते हैं। तो हर जगह पे हर दो दो बॉन्ड लिखने के बाद उसको H फिल्ड करेंगे तो हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा। बेंजीन में भी वैसे करते हैं। यहाँ बेंजीन में जैसे कि देखो, बेंजीन आपको पता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो C6 है, तो 6 का पहले तो 6 कार्बन ऐसे लिख देंगे। हाँ, उसमें हाइड्रोजन कितने बोले 6 है, तो हम पहले के बाद में क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है वो लिख देंगे। और उसके बॉन्ड वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे। ओके, तो हमारे ये क्या होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। All these carbon compound which contains the only the carbon and hydrogen are called the hydrocarbon। मतलब ऐसे ऑल जस्ट सभी कार्बन में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे, जैसे हमने अब तक सारे जो कंपाउंड्स देखे वो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अमॉन्ग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। मतलब मैंने आपको अल्कीन का फॉर्मूला बोला है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और अल्काइंस क्या होता है, अल्कीन और अल्काइंस। Unsaturated hydrocarbon which contains the one or more double bonds called the alkenes, and triple bonds consist are called alkynes. Okay. Hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this social platform on the form of free PDF notes, video, doubt session, quizzes, and links for this is given in this description box of these videos. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Stay tuned for the next video on the same topic. Thank you.